So, as we all know, the living world is full of amazing diversities of living organisms. Like we have from the microorganisms to macroorganisms like humans, or we can go with the microorganisms just like our Monera, Protista, and small microbes in environment which are present. So basically, the diversity of habitats of organism is also very vast and amazing. We have seen like there are millions and billions of organisms living on this planet, like be it be any plants, microbes, or anything, any animal. So this diversity makes us deeply reflect on what indeed is life. So, uh, obviously, you people have also wondered like what life is. Every time we think of, so there are two questions which raise in our mind, like what can be a living organism, what can be a non-living organism, like what are the features of a living organisms and what are the features of a non-living organism, like we have two questions in our mind, like what are the properties of living organisms. As we know that, okay, fine, some living organisms walk, move, they produce their own food, they have a eating habitat, they have a growth, they have metabolism, they have consciousness, they can think about themselves. And then when we see non-living organisms on the other hand, they don't have these properties, they don't do these things. So this was the first question, like what are the features of living organism and what are the features of a non-living organism. Another question that can come in our mind is like what the purpose of life is. Like, okay, we are the god is creating organisms, whether it be human beings या फिर कोई organism है जो छोटा organism है, बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स है, फंगाई है, anything, plants hai. So what is the purpose of creating them, what is the purpose of life? So basically in zoology or botany or in biology, what we do is we don't think about the what is the purpose of life, but yeah, we try to solve our first question, that is comparison between a living thing and a non-living thing. Rather, what is the purpose of the life is like a very philosophical question. Okay, who studies philosophy does that, like, okay, what is the purpose of a life or what life is all about? So, okay, so what is living? Now, there are various characteristics which define a living organism. Like, if you are possessing these features, then that creature is called as living. And if somebody is lacking these basic characters, तो उसको फिर नॉन लिविंग में हम लोग रखते हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, इधर वाटर बॉडीज है या टेबल चेयर एनीथिंग, तो उसको हम लोग फिर नॉन लिविंग में रखते हैं. क्यों रखते हैं नॉन लिविंग बींग्स में? क्योंकि उनके अंदर ये कैरेक्टर्स, ये जो मेन कैरेक्टर्स है जो हम लोग देख रहे हैं, वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं वो ऑर्गेनिजम्स. तो अभी लिविंग बींग्स को कैरेक्टराइज करने का कौन सा कैरेक्टर्स है जो कैरेक्टर्स हमें लिविंग बींग्स में दिखते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि अच्छा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ओके, so the main basic characteristics, five basic characteristics to define a living organism is, first one is growth, your second one is reproduction. Okay, फर्स्टली पहली चीज जो होती है वो ग्रोथ होती है. कोई चीज ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस चीज में ग्रोथ है या नहीं है, और वो रिप्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है. दैट मीन्स कि वो अपने जैसा दूसरा बना रहा है या नहीं बना रहा है. बिकॉज गॉड ने तो एक क्रिएट कर दिया, बट द प्रोसेस ऑफ लाइफ शुड गो ऑन. तो जो एक इंडिविजुअल है उसका अदर कॉपीज भी बनना चाहिए, सो दैट द साइकिल रिमेन्स मेंटेन्ड. तो पहले जो दो कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं, वो है हमारे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन. बट ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर्स या फीचर नहीं बोल सकते हैं. क्यों नहीं बोल सकते हैं? उसका एक रीजन है कि जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है किसी भी क्रिएचर की, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए.
तभी हम लोग उस कैरेक्टर्स को डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं. अब ग्रोथ में एक्सेप्शन है. कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रो नहीं करते हैं, एक पॉइंट के बाद जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, जैसे कि जो स्टेराइल कपल्स हो गए या कोई और हो गया. जब मैं फर्दर अभी आपको वन बाय वन ये कैरेक्टर्स एक्सप्लेन करूंगी तो आई विल एक्सप्लेन यू कि ग्रोथ के एक्सेप्शंस क्या है और रिप्रोडक्शन के एक्सेप्शंस क्या है, जिसमें कि ग्रोथ नहीं होती है, जिसमें कि आपका रिप्रोडक्शन नहीं होता है. तो दैट्स वाई इन 5 कैरेक्टर्स में से जो दो पहला कैरेक्टर है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का, उसको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में नहीं रखते हैं. Now, the third character is metabolism, and the fourth character is cellular organization, and the fifth one is consciousness. Now, metabolism is like how a thing functions. और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया हमारा जो सेल्स से बना होता है. लाइक वी ऑल नो द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. फिर सेल्स, डिफरेंट सेल्स कंस्टिट्यूट करके एक टिश्यू बनाते हैं. तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग मतलब हर लिविंग बीइंग या तो यूनिसेलुलर है या तो मल्टी सेलुलर है, बट उनका सेल से ही वो बने हैं. बट अगर वही चीज आप देखोगे माउंटेन्स में या कोई भी चेयर, डेस्क, टेबल, तो वो सब चीजें सेल से नहीं बनी होती हैं. ओनली लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. हाँ, वो बात अलग है कि वो टिश्यू हो ना हो या मल्टी सेलुलर वो हो ना हो, या सिर्फ वो सिंगल सेल से बने हो, यूनिसेलुलर हो. तो दैट्स वाई हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक यूनिट सेल ही होता है. तो इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक मेन कैरेक्टर है हमारा किसी भी चीज को लिविंग डिस्क्राइब करने के लिए. नाउ आवर फिफ्थ मेन कैरेक्टर इज कॉन्शियसनेस, यानी कि उस पर्टिकुलर लिविंग बीइंग में सेंस करने की एबिलिटी है या नहीं. कॉन्शियसनेस क्या होता है हमारा कि एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग. हम अपने आसपास हमारे क्या हो रहा है वो सेंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. तो हर एक लिविंग बींग्स, वेदर इट बी प्लांट या फिर वो छोटा सा अमीबा ही क्यों ना हो या वो छोटा सा कोई बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, बट वो उसके पास वो एबिलिटी होती है कि वो अपना सराउंडिंग सेंस कर सकता है. So these are the 5 basic characters of a living being. Now the 3 characters, metabolism, cellular organization, and consciousness, are the 3 characters which are the defining properties or features of a living being. Now, as I told you कि the character which has no exception is called a defining properties of life. यानी कि जिसमें exceptions नहीं होते उन्हीं को अपन defining properties बोलते हैं life की. Okay, now one by one we'll see these main characters of a living organism. So first we'll start with growth. Now what is growth? So growth is basically increase in mass or overall size of a tissue or organism or its part is called growth. That means कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके मास में या तो उसके साइज में, मतलब उसका अगर टिश्यू है तो उसके साइज में ग्रोथ हो रहा है या उसके वेट में ग्रोथ हो रहा है, या फिर किसी भी पार्ट्स में, उस ऑर्गेनिज्म के किसी भी टिश्यू पार्ट में अगर ग्रोथ हो रहा है तो उसको हम लोग, मतलब साइज इंक्रीज कर रही है उस चीज की, तो उसको हम लोग ग्रोथ बोलते हैं. अब क्या होता है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ. ये जो होते हैं, यानी कि अगर वो ऑर्गेनिज्म मास में बड़ा हो रहा है या उसका नंबर में बड़ा हो रहा है, तो उन दोनों चीज को, ये दोनों जो होते हैं ये दोनों ट्विन कैरेक्टर्स होते हैं हमारे ग्रोथ के. ठीक है. नाउ ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल. यानी कि ग्रोथ क्या होता है कि इरिवर्सिबल होता है, वो रिवर्सिबल नहीं होता है. अब रिवर्सिबल क्या हो गया कि जो वापस स्टेट में जा सके. ग्रोथ में क्या होता है कि आप वापस उस स्टेट में नहीं जा सकते हो. वंस योर सेल हैज ग्रोन इट वुड नॉट डिक्रीज. तो वो इरिवर्सिबल होता है और परमानेंट होता है ग्रोथ. ऐसा नहीं होता है कि आज आप ग्रो किए कल आप ग्रो नहीं करोगे, या आज आपने ग्रो कर लिया तो वो ग्रो
खत्म हो जाएगा, नहीं, एक बार जो चीज सेल या टिश्यू ग्रो हो गई, वो ग्रोथ हो गई उसमें। तो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन। किसी भी इंडिविजुअल का अगर कोई ऑर्गन, कोई बॉडी पार्ट, कोई टिश्यू ग्रो कर रहा है तो वो परमानेंट होता है और वो इरिवर्सिबल होता है। यानी कि अगर कोई पार्ट फ्लैट है, उसमें थोड़ी प्रोट्यूबरेंस आई, तो वो वापस अपने उस फ्लैट स्टेट में नहीं जाएगा। वो ग्रो कर रहा है तो वो ग्रोथ उसका फिर वापस नहीं होगा, वो ग्रोथ रह जाएगा उसका। Now, growth is the result of metabolism when the synthetic reactions or anabolism is more than that of the destructive process or catabolism. Now, what is anabolism and what is catabolism? तो anabolism होता है किसी भी चीज में एड ऑन होना, यानी कि इन सिंपल टर्म्स अगर बोले तो किसी भी चीज में जोड़ना इज anabolism, एंड catabolism इज टू सब्सट्रैक्ट समथिंग, दैट इज किसी भी चीज को ब्रेक करना, तोड़ना इज catabolism। सिंपल वर्ड्स में बोलो तो एनाबॉलिज्म हमारा जोड़ना होता है और कैटाबॉलिज्म तोड़ना होता है। तो जो ग्रोथ होता है वो मेटाबॉलिज्म में दो ही मेन चीजें होती है, या तो एनाबॉलिज्म होगा या तो कैटाबॉलिज्म होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि ग्रोथ में जो सबसे ज्यादा चीज होती है वो होता है एनाबॉलिज्म, यानी कि चीजें एड ऑन होती है, हमारी सेल्स ऐड होती है तो, या फिर टिश्यू की साइज इंक्रीज करती है तो सेल्स ऐड होती है। तो इसीलिए ग्रोथ क्या होता है कि सिंथेटिक रिएक्शन एनाबॉलिज्म पे ज्यादा डिपेंड करता है रादर देन ऑन कैटाबॉलिज्म, यानी डिस्ट्रक्शंस नहीं होता है ग्रोथ में, हमारा एनाबॉलिज्म्स को हम लोग मेनली कंसिडर करते हैं। नाउ इन द रिवर्स सिचुएशन, अगर मान लो रिवर्स सिचुएशन हो रही है, लेस एनाबॉलिज्म हो रहा है किसी ऑर्गेनिज्म का और कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, यानी कि एड ऑन कम हो रहा है और वहां डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डी ग्रोथ हो रही है, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ पॉजिटिव नहीं हो रही है हमारी वहां, क्योंकि वहां पे सेल्स ऐड होने की जगह पे हमारे सेल्स रिड्यूस हो रहे हैं, यानी कि एनाबॉलिज्म कम हो रही है और कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो रही है। जबकि हम लोग ग्रोथ को एक्चुअल ग्रोथ तब बोलते हैं जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में एनाबॉलिज्म ज्यादा हो और कैटाबॉलिज्म बहुत मिनिमल हो, तो हम लोग उस चीज को बोलते हैं कि हाँ यहाँ ग्रोथ आकर हो रही है। बट वही चीज अगर रिवर्स हो जाए, एनाबॉलिज्म कम हो जाए और कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाए, तो हम लोग वो बोलते हैं कि उसमें डी ग्रोथ हो रही है, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ हो रही है। Now, what are the types of a growth? तो growth are of two types, intrinsic growth and extrinsic growth. Now, intrinsic growth क्या होती है हमारी कि जो बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ होगी हमारी इंट्रिंसिक ग्रोथ, यानी कि किसी का सेल मल्टीप्लाई हो रहा है किसी ऑर्गेनिज्म का, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है। भाई एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है कि दिस ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि बाहर से कोई ग्रोथ हो रही है, यानी कि मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर किसी चीज का एक्यूमुलेशन हो जा रहा है, कोई भी चीज डिपॉजिट हो रही है और फिर वो ऐसे वहां पे ग्रो करता हुआ दिख रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ ग्रोथ्स करते हैं। जैसे मान लो कोई माउंटेन है, उसके ऊपर स्नोफॉल हुई तो वो थोड़ा और बड़ा दिखने लगा क्योंकि उसमें स्नो डिपॉजिट्स हो रही हैं, तो ग्रोथ तो उनका भी दिख रहा है कि वो बड़े हो रहे हैं, लेकिन वो तो ऊपर से ग्रो हो रहा है। तो मेनली जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे, वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ प्रोसेस करते हैं। वही इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, क्योंकि इनसाइड द बॉडी ग्रोथ होती है वो, यानी कि जो हमारा सेल है वो मल्टीप्लाई होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड लिविंग बींग्स डू इंट्रिंसिक ग्रोथ्स। ना ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स, मेनली इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक टाइप होते हैं, बट ग्रोथ को हम लोग दो और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज इनडिटर्मिनेट ग्रोथ और डिटर्मिनेट ग्रोथ। यानी कि इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हो गई, अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है किसी की बॉडी की या किसी सेल की, और डिटर्मिनेट ग्रोथ हो रही है कि जो लिमिटेड ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अब अनलिमिटेड ग्रोथ क्या होती है हमारी, यानी कि इंटर इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होती है। तो जो ग्रोथ
कंटिन्यूअसली किसी के लाइफ स्पैन में ग्रो होती है, यानी कि पूरी लाइफ स्पैन में उनके ग्रोथ हो ही रही है, सेल्स डिवाइड हो ही रहे हैं, सेल्स मल्टीप्लाई हो ही रहे हैं, उसको हम लोग इनडिटर्मिनेट ग्रोथ बोलते हैं या अनलिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं। तो अनलिमिटेड ग्रोथ क्या होती है? हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होती है। आप हमारा ह्यूमन बॉडी कल्चर क्या, एक सर्टेन लाइफ स्पैन के बाद हमारे बॉडी ग्रोथ करना बंद कर देता है, एक सर्टेन हाइट के बाद हमारी बॉडी ग्रो नहीं करती है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद हमारा सेल्स ग्रो नहीं करता है, सेल्स मल्टीप्लाई नहीं होता है, या किसी भी एनिमल के अंदर में जो होता है वो सेल्स मल्टीप्लाई नहीं होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। लेकिन जो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है हमारी, वो किसके अंदर हमको देखने को मिलेगी? प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के इसके साथ क्या सीन है कि जितनी लाइफ स्पैन होती है प्लांट्स की, वो पूरे होल लाइफ स्पैन के अंदर में प्लांट्स ग्रो करते रहते हैं। एज far as their life goes on, this growth continues on. Now what is the determinate growth? Determinate growth is our limited growth, यानी कि एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन के बाद उस इंडिविजुअल के अंदर ग्रोथ होना बंद हो जाएगा। एक सर्टेन एज तक ही वो ग्रोथ होगी, जैसे कि मैंने एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में बताया कि एक सर्टेन एज के बाद हमारा ग्रोथ बंद हो जाता है, बॉडी ग्रो करना बंद कर देता है। तो जो डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, यानी कि लिमिटेड ग्रोथ होती है वो हमारी, वो सिर्फ हमारे एनिमल्स के अंदर होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हमारे अंदर सेल डिवीजन होती है, क्योंकि मान लो कोई सेल डिवीजन हमारे अंदर होगी, लेकिन उसको ग्रोथ नहीं बोलेंगे। जैसे मान लो हमारी बॉडी कट गई, तो वहां पे टिश्यू रिपेयर के लिए सेल ग्रोथ होती है, लेकिन उसको हम लोग बॉडी ग्रोथ में कंसिडर नहीं करते। ग्रोथ हम लोग तभी बोलते हैं जब बॉडी ग्रो हो रही है, सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नाउ द सेकेंड वन इज reproduction. Second character is our reproduction. Now what is reproduction? तो production of new individual or progeny is called as reproduction, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक दूसरा कॉपी बना रहा है, एक दूसरा इंडिविजुअल बना रहा है, तो उसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोगैनी प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसी होती है? तो उनका क्या होता है कि जो वो दूसरी प्रोगैनी बनाते हैं या जो न्यू इंडिविजुअल वो प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर सेम फीचर होती है, मोर और व्हाट सेम होती है उनके पेरेंट्स की तरह। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या होता है, जैसे मान लो हमारा बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, उनके अंदर क्या होता है कि सिर्फ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स होती है। यानी कि उसका मतलब क्या हो गया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन उनके अंदर सेम होता है। अमीबा क्या करता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अमीबा। अमीबा क्या कर रहा है? अमीबा है, अमीबा के अंदर अगर अमीबा के डायग्राम को कैरेक्टराइज करो तो अमीबा की एक पेरेंट बॉडी होती है, उसके अंदर बस एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। वो सेल डिवाइड कर गया, न्यूक्लियाई डिवाइड कर गया, कुछ दिन बाद डॉटर बॉडी बनाया और वो डॉटर बॉडी सेपरेट हो गई। फर्दर मोर फिर वही होता है। तो उनके अंदर वही होता है कि सेल्स डिवाइड करते रहते हैं और सेल्स डिवाइड कर रहा है और उसके बाद वो प्रोड्यूस करते जा रहा है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन चल रही है। उसके अंदर रिप्रोडक्शन का मतलब भी उसका बस वही होता है कि ग्रोथ भी उनके लिए वही चीज है, रिप्रोडक्शन भी उनके लिए वही चीज है। वो सेल्स डिवाइड हुआ, उसके अंदर का दो सेल में डिवाइड हो गया, वो फिर सेल्स अलग हो गया, एक पेरेंट बॉडी अलग हो गई और उसके दो डॉटर सेल्स अलग हो गए। सो ये हो गई, जैसे अमीबा में होता है वैसे ही यूनिसेलुलर एल्गीज होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी वैसे ही डिवाइड करते हैं। तो उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन काइंड ऑफ सेम होती है। अब क्या होता है कि रिप्रोडक्शन जो होती है वो आप किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं देखोगे, इसीलिए रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर ऑफ डिफाइनिंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ अब इसके एक्सेप्शंस है, मैंने पहले आप लोग को बताया कि
इन दो कैरेक्टर्स को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या हो जाता है, कुछ एक्सेप्शंस प्रेजेंट हो जाते हैं। जैसे ग्रोथ के अंदर एक्सेप्शंस प्रेजेंट हो गए, वैसे रिप्रोडक्शन के अंदर भी एक्सेप्शंस प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम लोग इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं बोलते हैं। डिफाइनिंग हम लोग तब बोलते हैं अगर इसके अंदर कोई एक्सेप्शन प्रेजेंट नहीं होता है। जिस भी कैरेक्टर के अंदर कोई एक्सेप्शन प्रेजेंट नहीं होता है, उसी कैरेक्टर्स को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज बोलते हैं। नाउ रिप्रोडक्शन के एक्सेप्शंस क्या है? आप म्यूल्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई ह्यूमन कपल्स है, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, वेदर इट बी एनी एक्सेप्शंस इन देम। या तो उनका वो नहीं हो सकता है, मे बी उनके अंदर यूट्रस प्रेजेंट नहीं हो, और स्टेराइल कपल्स हो, कुछ भी हो सकती है उसकी रीजन। तीसरा एग्जाम्पल हमारे एक्सेप्शन का हो सकता है वर्कर बीज। एज वी नो कि जो क्वीन बीज होती है बस वही रिप्रोडक्शन करती हैं। वर्कर बीज जो होती है वो रिप्रोडक्शन नहीं करती। सिर्फ जो बीज की कम्युनिटी में देयर इज ऑलवेज अ क्वीन बी। जो क्वीन बी होती है बस वही प्रोडक्शन करती है। जो वर्कर बीज होती है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं न्यू इंडिविजुअल। तो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ द रिप्रोडक्शन। इसीलिए हम लोग रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोलते हैं। नाउ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसीलिए हम लोग रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं लेते हैं, क्योंकि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लेने का एक सिंपल क्राइटेरिया है कि उसके अंदर एक्सेप्शंस प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। नाउ रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप। We all know reproduction is of two types, बहुत बार पढ़ा है, asexual reproduction and sexual reproduction. Now let's check out what is asexual reproduction. So reproduction in which gametic fusion or fertilization and meiosis are not involved is asexual reproduction. यानी कि हमें जिस reproduction के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स इंडिविजुअल नहीं चाहिए और फ्यूजन नहीं करवा रहे हैं उनका, या फिर ले लो मियोसिस माइटोसिस जो होता है हमारा वो नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रखते हैं। नाउ देर आर द फ्यू टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक बाय एसेक्सुअल स्पोर्स। जैसे अगर स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि कुछ एल्गी और फंगी में होता है, ये सब जब इंडिविजुअल आप पढ़ोगे तो आई tell you in detail in the upcoming chapters. I'll explain you all these like spores reproduction in algae and fungi and budding reproduction. Now दूसरा तरीका हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बडिंग का, यानी कि ईस्ट में या हाइड्रा में होती है। जो प्लांट जो बॉडी है उसके ऊपर एक छोटा सा बड बना, फिर न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, फिर वो बड अलग हो गया, सेपरेट हो गया, फिर वो बड फर्दर ग्रोथ करके फिर वो बड फर्दर डिवीजन कर रहा है। तो ऐसे सोन प्रोसेस कंटिन्यू हो जाती है। तीसरा तरीका हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन का। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होती है कि जो फिलामेंटस एल्गा प्रेजेंट होता है, या मॉस प्लांट्स में प्रोटीनीमा मॉस प्लांट्स जो होते हैं, या फिर बहुत सारे एल्गी हैं, रेड एल्गीज में भी हैं, ब्रायोफाइट्स में भी हैं हमारे, रोडोफाइटसी में भी है हमारे। एक प्लांट बॉडी होती है, मतलब वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होते जाते हैं, फिर वो जो अलग अलग इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स है वो फर्दर रिप्रोडक्शन करते जाता है। नाउ दूसरी चीज है ट्रू रीजनरेशन। इसमें क्या होता है कि जो फ्रेगमेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो रीजनरेट करते हैं अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लानेरिया में होता है। तो इस टाइप का जो रीजनरेशन होता है उसको हम लोग मॉर्फोलैक्सिस टाइप ऑफ रीजनरेशन करते हैं। एक दूसरी टाइप होती है एपीमॉर्फोसिस टाइप, वो मैं आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ना मॉर्फोलैक्सिस टाइप में क्या होती है कि इसको हम लोग ट्रू रीजनरेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन हो रही है, बट जो रीजनरेशन एक और टाइप की होती है जो इमॉर्फिस टाइप होती है, उसमें क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स के बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो हमारे लॉस्ट हो जाते हैं। मान लो किसी ऑर्गेनिज्म ने अपना बॉडी पार्ट लॉस्ट कर दिया, तो उसको वो जो रिपेयर करते हैं खुद में या रीगेन करते हैं, उसको भी हम लोग रीजनरेशन ही बोलते हैं, बट वो रीजनरेशन हमारा एपीमॉर्फोसिस टाइप हो जाता है। बट जिस लॉस्ट बॉडी पार्ट में जैसे मान लो अगर प्लानेरिया में क्या होता है
की प्लानेरिया की बॉडी है, उसमें क्या हो गया कि एक बॉडी पार्ट उनका कट के गिर गया या सेपरेट हो गया पेरेंट बॉडी से, तो वो बॉडी पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो दैट इज ट्रू रीजनरेशन, यानी कि वो रीजनरेट कर रहे हैं लेकिन वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उस चीज को। बट लीजर्ड और स्टार फिशेस वगैरह के केस में क्या होता है, जैसे लीजर्ड में आपने देखा होगा, लीजर्ड की टेल कट के गिर गई या फिर स्टारफिश का एक पार्ट, बॉडी पार्ट कट के गिर गया, तो वो पार्ट जो होता है वो पार्ट ग्रो नहीं करेगा, लेकिन जो लीजर्ड है वो अपना न्यू टेल ग्रो कर लेती है। हमारे अंदर वो चीज नहीं है, हम रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। हमारा हाथ कट के गिर जाएगा, पैर के कट के गिर जाएगा, तो हम लोग उस चीज को वापस से, हमारी बॉडी उस चीज को बना नहीं सकती है। लेकिन लीजर्ड और स्टारफिशेस के पास क्वालिटी होती है रीजनरेशन की। अगर लीजर्ड का जो टेल है वो लॉस्ट हो गया या वो कट के गिर गया, तो लीजर्ड एक न्यू टेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोड्यूस कर लेता है अपनी बॉडी में। तो इस टाइप के रीजनरेशन को हम लोग एपीमॉर्फोसिस टाइप बोलते हैं। नाउ व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है कि रिप्रोडक्शन जिसमें कि जो दो गैमीट्स होते हैं वो फ्यूज करते हैं, मियोसिस का प्रोसेस होता है और फर्टिलाइजेशन होता है नए इंडिविजुअल को बनाने के लिए, उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें एक मेल गैमेट चाहिए, एक फीमेल गैमेट चाहिए, फिर मियोसिस से मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स बने, फिर वो लोग फर्टिलाइज हुए, फ्यूज टुगेदर, उनका फ्यूजन करवाया हमने, और फिर नई प्रोगैनी बनाई। तो उस चीज को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अभी एक्चुअली वी आर रनिंग लेट ऑन टाइम, तो आज का सेशन यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में कल आई कंटिन्यू विद द मेटाबॉलिज्म एंड देन योर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, और फिर हम लोग देखेंगे कॉन्शियसनेस क्या होती है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।